Good morning, students. I welcome you all once again in online English class. Today, we are going to discuss question answers of the chapter The 100 Dresses Part 2. In Part 1, we had discussed about the character sketch of Wanda Petronovsky, Peggy, and Maddie. Peggy and Maddie were two best friends. Wanda Petronovsky was a poor girl who was an immigrant from Poland to America. Every student of the class used to make fun of her due to her name as well as her dress. She used to wear a blue faded dress every day, but whenever someone asked about how many dresses she is having in her closet, she used to answer that she is having 100 dresses in her closet, all lined up. So everyone used to tease her because all the students knew that she was not having the 100 dresses. But at last they got to know that she was having those 100 dresses in her mind, not in her closet. Then in second part, we came to know that Wanda Petronovsky left the school just because all the students used to tease her. When Miss Mason got the letter from her father, she was very disappointed, and Maddie and Peggy also were very disappointing after knowing that Wanda left the school just because everyone teased her. So, at last, Paddy and Maggie came to know through the letter only that Wanda used to like them, and she also gifted one drawing each of them also. They were happy to know that. This was the brief summary of chapter 1 and chapter 2. Let us discuss the question answers now. What do you think about Wanda's action of not coming to school anymore? आप क्या सोचते हैं वोंडा का जो एक्शन था कि वो जो स्कूल नहीं आ रही थी? Wanda never replied to anyone against their misbehavior. We all know that she was a quiet and shy girl, so she never replied to anyone whenever someone teased her. But due to the insult she faced, she decided not to come to school anymore. It was very mature of her age to teach them lesson without any argument. Yes, she never argued with any of the student, rather she kept quiet and didn't misbehave with any of the child of the class. It was a mature decision that she left the school without any argument. Second question. How did Peggy and Maddie try to amend their behavior towards Wanda? Yes, when Peggy and Maddie came to know that she left the school due to the insult which they gave her, सो दे वॉन्ट टू अमेंड देयर बिहेवियर. वो अपने बिहेवियर को अमेंड करना चाहते थे. जो उन्होंने टीज़ किया था वोंडा का, उसके लिए सॉरी फील करना चाहते थे. सो हमें कैसे पता है? Both Peggy and Maddie decided to change their behavior as Peggy had tried to justify that it was not her dress for which she teased. अब यहाँ पर पैगी एंड मैडी डिसाइडेड टू चेंज देयर बिहेवियर. अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते थे. पैगी बताना चाह रही थी कि वो उसकी ड्रेस नहीं थी जिसके कारण वो उसे टीज किया करती थी. रादर इट वॉज दोज 100 ड्रेसेस जो उसके पास नहीं थी फिर भी वो कहा करती थी. पैगी जस्ट वॉन्टेड टू नो वाई शी यूज टू लाइड. वो झूठ क्यों बोलती थी, इसलिए वो डेली पूछा करती थी. उसकी इंटेंशन, पैगी की इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी. वाई डिड मैडी रश टू पैगीज हाउस वाइल गेजिंग एट द ड्राइंग. मैडी जो है पैगी के घर क्यों भागी हुई गई जब उसने ड्राइंग को देखा. मैडी रश टू पैगीज हाउस वाइल गेजिंग एट द ड्राइंग बिकॉज शी हैड सीन हर फेस इन द ड्राइंग एंड वॉन्टेड टू कन्फर्म अबाउट पैगीज फॉर द सेम. एट लास्ट व्हेन पैगी एंड मैडी गोट द लेटर, जब लास्ट में उनको लेटर मिला था तो उस लेटर में ये लिखा था कि वोंडा हैज़ गिफ्टेड वन ड्रेस टू ईच ऑफ देम. एक एक ड्रेस उन दोनों को दी है. तो जब बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसका फेस बना हुआ है ड्रेस के साथ वो मैडी और पैगी का ही है. जब मैडी ने वो देखा तो वो सेम चीज़ कंफर्म करने के लिए कि जो पैगी साथ भी ऐसा ही है, ड्राइंग में उसी का ही फेस है, तो ये कंफर्म करने के लिए पैगी के घर गई थी. वाई डिड पैगी एंड मैडी एज्यूम दैट वोंडा हैड रिसीव देयर लेटर. पैगी और मैडी जिनको वोंडा का कोई रिप्लाई नहीं मिला था
फिर भी उन्होंने कैसे अज्यूम किया कि वोंडा को लेटर मिल गया है, रिसीव हो गया है। Peggy and Maddie assume that Wanda has received their letter because in her letter to Miss Mason, Wanda requested her to give her drawing to both of them. क्यों? क्योंकि जब मिस मैसन को क्रिसमस के आसपास एक लेटर रिसीव हुआ था तो वोंडा ने रिक्वेस्ट की थी मिस मैसन उनकी टीचर से कि वो ड्राइंग को गिफ्ट कर दे पैगी और मैडी को। तो यहाँ से उन्होंने एज्यूम किया कि उन्हें जो लेटर था वो मिल गया है। What did the children of the room 13 do on Christmas Eve? Christmas Eve पर रूम नंबर 13 के चिल्ड्रन ने क्या किया? The children of room 13 decorated their room with great love and affection. उन्होंने बहुत आराम से रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार से अफेक्शन से रूम को डेकोरेट किया। They decorated it with Christmas bells and a Christmas tree. उस रूम को क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने डेकोरेट किया। Why was there no reply to the letter written to Wanda by the girls? पैगी और मैडी ने जो लेटर वोंडा को लिखा था उसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं मिला? The girls, Maddie and Peggy, didn't receive any reply from Wanda either because of her anger towards them or because they wrote the address of her old house in Boggins Heights and not of her new house. शायद इसलिए क्योंकि इट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन द चैप्टर बट शायद इसलिए क्योंकि वोंडा हो सकता है उनसे एंग्री हो, गुस्सा हो, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है क्योंकि उनको उसके नए घर का एड्रेस नहीं पता था तो उन्होंने पुराने घर पर वो लेटर भेज दिया था, शायद इसीलिए उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला था। What did Peggy say to Maddie when they did not find her at Boggins Heights? पैगी ने क्या कहा मैडी को जब वहाँ पर पुराने घर में वोंडा नहीं मिली? पैगी टोल्ड मैडी दैट वोंडा हैड वन बिकॉज ऑफ हर टीजिंग दैट इंस्पायर हर टू ड्रॉ सच ब्यूटीफुल ड्रेसेस। पैगी ने क्या कहा मैडी को कि वोंडा क्यों जीती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि पैगी उसे डेली टीज करती थी, इसी उसी टीजिंग ने वोंडा को इंस्पायर किया है वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाने ड्रॉ करने के लिए। अदरवाइज शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू विन द कॉन्टेस्ट, और अगर पैगी टीज ना करती तो शायद वोंडा ये कॉन्टेस्ट कभी भी ना जीत पाती। सो बोथ द गर्ल्स हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डायरेक्टेड बाय देयर एक्शन। तो दोनों ही गर्ल्स का जो एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी है, तरीका है, वो बिल्कुल अलग है और इसी के साथ उनका एक्शन भी चेंज हो जाता है। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वोंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? गर्ल्स को कैसे पता लगा? हेयर द गर्ल्स आर पैगी एंड मैडी। वो दोनों को कैसे पता लगा कि वोंडा उन्हें लाइक करती है, ये जानते हुए भी कि वो दोनों टीज करती थी उसे। ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम मिस मैसन रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम वोंडा सेइंग हाउ मच शी मिस्ड एवरीवन। जब क्रिसमस के टाइम पर मिस मैसन को एक लेटर रिसीव हुआ कि वोंडा का, कि वो जिसमें वो ये बताते हैं कि वो सबको बहुत ज़्यादा मिस करती है। शी आस्क्ड द टीचर टू गिव द ड्राइंग ऑफ द ब्लू ड्रेस टू मैडी एंड द वन विद ग्रीन ड्रेस टू पैगी। वोंडा ने रिक्वेस्ट की थी मिस मैसन को कि वो एक ब्लू कलर की ड्रेस मैडी को गिफ्ट कर दे और ग्रीन कलर की ड्रेस पैगी को, ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस। ऑब्वियसली दिस इम्प्लाइड दैट वोंडा लाइक देम इवन आफ्टर दे टीज हर। यहाँ से उन्हें पता लगता है कि वोंडा उन्हें लाइक करती थी जबकि वो टीज किया करते थे उसे। Why do you think Vonda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? आपको ये क्यों लगता है कि वोंडा की फैमिली दूसरी सिटी में चली गई थी? क्या आपको लगता है कि उनकी जो लाइफ है वहाँ डिफरेंट हो गई थी? Vonda's family moved to a different city because in a big city there were many Polish immigrants, so the natives would not find them strange and would not make fun of them. वोंडा की फैमिली डिफरेंट बड़ी सिटी में, बिग सिटी में इसलिए चली गई थी क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा पोलिश इमिग्रेंट्स थे, पोलैंड के पर्सन्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, नेटिव्स बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको स्ट्रेंज नहीं लगेगा अगर वो लोग भी वहाँ जाकर रहते हैं और उनका मजाक भी नहीं बनाया जाएगा। वोंडा एंड हर ब्रदर जैक कुड अटेंड स्कूल विदाउट फीलिंग बैड।
वोंडा और उसका ब्रदर बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के वो स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। यस, लाइफ इन द बिग सिटी वुड बी डिफरेंट फॉर फैमिली। बिल्कुल जो लाइफ है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज देयर वुड बी मोर पीपल इन देयर कम्युनिटी ओवर देयर, क्योंकि उनकी सेम कम्युनिटी के वहाँ पर और भी लोग होंगे। दे वुड फील कंफर्टेबल देयर, और वहाँ पर उनको कंफर्टेबल भी लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these questions. This is all about today. Thank you. Have a good day ahead.